Hello everyone, I welcome you all to another video of System of Equation series. In this, we will try to understand what exactly the solution of a system of linear equation means. Now, first of all, we will start with a system in which there are two variables. So, let we have a system with two variables, that is x and y. So our equations will be like 2x plus 3y equals to 2, say, and say x minus y is equals to 3. So these are the two equations. We have two variables and two equations. So what do we mean by the solution of this system of linear equations? A solution is the value of x and y which satisfy equation number 1 as well as satisfy equation number 2. Now, what does this equation represent? This equation represent a line, a straight line. This represent a straight line. So, if we have two lines, they can intersect. We are talking about two variables, so we are in R. They can intersect, or they can be parallel to each other, or they can coincide each other. Okay? So there are three cases in two variables. If two lines intersect, matlab there is a point, we will get a point which will satisfy equation 1, which will satisfy equation of the line 1 as well as equation for the line 2, because it is lying on both the lines, right? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन यही तो रिप्रेजेंट करती है ना, जनरल फॉर्म ही तो रिप्रेजेंट करती है उन सारे पॉइंट्स की जो इस लाइन पर लाई कर रही हैं. इसी रूल से लाई करेंगे. जो जो पॉइंट्स इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे वो एक लाइन पर, इस लाइन पर लाई करेंगे, राइट? सो the solution is the point which satisfy both the equations, and since in this diagram we are seeing that these lines intersect at a single point, so there will be a unique solution. This will be a unique solution for the system of equation. Now in this scenario we are saying that there are two lines running parallel to each other. They are not meeting. They are going hand in hand with each other, but they are not meeting. They are at a particular distance from each other. Wherever you go, wherever you take, as lines can extend infinitely, so they, wherever you go, they will be at the certain distance from each other, fixed distance from each other. So these lines are parallel to each other. There is no common point which lie on both the lines. There is no point which satisfy the equation of both the lines. So this is the condition for inconsistency if we are talking of two variables, right? In this scenario, we have two lines which are coincided, which lie one on the other, right? So there are infinitely many points, as the two lines are lying one on the other, एक के ऊपर दूसरी lie कर रही है. So all the points that satisfy the equation 1 will also satisfy the equation 2, since both the equations represent the same line. So here we have a scenario of infinite solution. ठीक है?
ये क्या सिनेरियो है कि हम दो जन चल रहे हैं, कभी जिंदगी में हमने एक बार अपना पाथ क्रॉस किया है एंड देन वी विल नेवर मीट अगेन। ओके, यहाँ पर है ये दोनों को दिख तो रही हैं एक दूसरा चलते हुए, बट वो कभी भी मिल नहीं पा रहे हैं। देयर इज एन ऑकवर्डनेस बिटवीन देम, दे आर नेवर एबल टू मीट। ओके, एंड इन दिस सिनेरियो दे आर देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो इस पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोथ द लाइंस वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। लाइक योर पेरेंट्स, यू विल ऑलवेज बी विद योर पेरेंट्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी का सिनेरियो हमारे पास ये है और ये दोनों हमारे पास कंसिस्टेंसी के सिनेरियो है। नाउ यहाँ पर क्या था, हमारे पास दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे। व्हाट इफ आई हैव जस्ट वन इक्वेशन, this equation still represent a line, right? And what will be the solution of this system of equation where there is only one equation? The solution are all those points which satisfy every equation in a system. Here we have only one equation, that is all those points that satisfy this equation are the solution of the system of equation. So the line itself will be the solution for this system. So how many solution? How many points lies on a line? A line can be extended infinitely. So there are infinitely many points lying on a line. So in this scenario where we have two variables, but there is only one equation, there is a possibility of infinite solution. Can there be a unique solution? No. Can it be inconsistency condition? Can there be an inconsistency condition? No. Now, if we relate it with the previous, which we have studied, the cases, different cases, the augmented matrix corresponding to this system will be 2, 3, and 2. So, what you are seeing, there is full row rank. Whenever there is a full row rank, there is no condition for inconsistency, right? And you can see that the rank of A, or you can say rank of augmented matrix, is 1, which is less than number of variable, that is 2, right? Number of variable is 2. So no full column rank नहीं है, कॉलम रैंक नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर विल बी अ फ्री वेरिएबल, hence there will be no unique solution. If solution exists, they will be infinite. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये लाइन है, लाइन को सेटिस्फाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट ही सिस्टम का सोल्यूशन है, तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या आप ये यहाँ से वेरीफाई कर पा रहे हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है? ओके, नाउ सपोज इन टू वेरिएबल्स वी हैव 5 इक्वेशंस, से x plus y is equals to 2, x minus y is equals to say 5 minus 5, 3x plus 2y is equals to 5, 6x plus 4y is equals to 10, 2x is equals to 2x plus y is equals to minus 3. Okay, these are the 5 equations we have. So we have a system of linear equations in 2 variables. Each equation represent a line. If we are able to get some points which will satisfy every equation in the system, then the system is consistent. If we are not able to get a point that satisfy all the equations, या फिर we are not able to get a point where
which lie on all these lines, जिनकी इक्वेशन हमें यहाँ दिख रही है, सो द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, जहां पर ये सारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी. ठीक है, नाउ अगर हम देखें यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2. ये लाइन हमारी ये वाली मंजी है. यहाँ पर बोला है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5. अगर x 0 है तो -5. 1 2 3 4. ठीक है, एंड अगर हम y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, -5. 1 2 3. y 0 रखेंगे, अगर हम x 0 रखेंगे तो y आएगा 5. सॉरी, 1 2 3 4 5. और जब हम y 0 रखेंगे तो x आएगा -5. सो 1 2 3 4 5. दिस विल बी दिस. ओके, next 2x plus y. If we put x is equals to 0, we have -3. 1 2 3 here. If we have y is equals to 0, then we have -3 by 2, yani 1.5. 1.5. Okay, so this is the line. ठीक है, extended infinitely. 3x plus 2y. If we put x is equals to 0, we have 5 by 2, that is 2.5. x 0 2.5, 0 2.5 यहाँ पर. Then we have, if y 0, 5 by 3. Okay, 1.66 something. So it will be like this. Okay, then we have 6x plus 4y. This will represent the same line. Both the equations represent the same line. So is there any point where all these lines intersect? ये जो है ये हमारी कहाँ जा रही है, अप इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है. बाकी सारी लाइंस हमारी यहाँ जा रही हैं. ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट की यहाँ पर, ये और ये इंटरसेक्ट की यहाँ पर, ये और ये इंटरसेक्ट की यहाँ पर, ये और ये इंटरसेक्ट की यहाँ पर, ये इसके साथ. दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट क्या ऑल 5 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं. सो देयर इज नो पॉइंट जहां पर ये सारी लाइंस आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें, या वो पॉइंट जहां से ये सारी लाइंस क्या हो रही हो, पास हो रही हो. ठीक है, सो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो आ जाएगी 1 1 2 1 -1 -5. then we have 2 1 -3 3 2 5 3 2 5 6 4 10. ठीक है, तो अगर हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 2. 1 को यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 0, -1 -1 -2 -5 -2 माइनस का 7. यहाँ पर हमें 0 बनाना पड़ेगा, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो 0. R1 का ट्वाइस माइनस कर रहे हैं. ठीक है, तो 1 -2 आ जाएगा -1, -3 -4 आ जाएगा माइनस का 7. इसका थ्राइस इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0, इसका थ्राइस इसमें से माइनस करेंगे तो 2 -3 यानी -1, इसका थ्राइस यानी 6 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1. इसका 6 टाइम्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, इसका 6 टाइम्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, इसका 6 टाइम्स 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2. ठीक है, अब हमें यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0. तो सबसे पहले तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो
रो है ये इसका ट्वाइस है, तो ये पूरी 0 बन जाएगी लास्ट रो हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -1 है, 0 -1 है, -7 है, -1 है। ठीक है, अब हम ये -1 जो है इनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 1 2 0 -2 माइनस का 7। क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो 0 -1 प्लस 1 0 -7 प्लस 7/2, सो आ जाएगा -7/2। यहाँ पर हमारे पास है 0, इसका हाफ माइनस करेंगे अगेन, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 प्लस 7/2, तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट वाला कॉलम्स था, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, पाइवोट आ रहे हैं। हम क्या देख पा रहे हैं कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो ज्यादा है रैंक ऑफ ए से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आनी चाहिए। और हमने यहाँ पर देखा डायग्राम से कि ये जो लाइंस हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रेट लाइंस की हैं, जिनको ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पांचों स्ट्रेट लाइन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर एक दूसरे को काट रही होंगी, पास कर रही होंगी। पांचों लाइंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 3 वेरिएबल्स की तरफ। अगर हम 3 वेरिएबल्स में बात करें तो सपोज अब हम सिस्टम लेकर चल रहे हैं, तो हमने 2 वेरिएबल्स में सारे डिस्कस कर लिए कि हमारे पास अगर 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, या पैरेलल हो सकती है, या फिर हमारे पास कोइंसाइड कर सकती है। इनके लिए आपने एक टेस्ट पढ़ा होगा। क्या टेस्ट पढ़े थे कि अगर हमारी रेशो A1/A2, ये A1 यहाँ पर A2, यहाँ B1 यहाँ B2, इनकी रेशो आपने देखी थी। अगर A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अगर A1/A2 B1/B2 और ये जो है C1/C2 के बराबर नहीं, ये दोनों इक्वल है बट ये रेशियो इसके बराबर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पैरेलल लाइन का केस आ जाता है। और कोइंसाइड का केस हमारे पास क्या आता है, जब A1/A2 B1/B2 सारी की सारी रेशियो जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस केस में हमारी जो दूसरी एक इक्वेशन है वो दूसरी की क्या होती है, एक स्केलर मल्टीपल होती है। इस केस में हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमने रिवाइज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब 3 वेरिएबल्स के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। 3 वेरिएबल्स में से हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अब इसमें हमारे पास इन वेरिएबल्स में अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कोई दिया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोज अगर हमें एक ही इक्वेशन दी है, हमारे सिस्टम में सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है एक्स वाई जेड की टर्म्स में। सपोज गिवन इक्वेशन है 2x + 3y + 4z इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, इसके सोल्यूशन जो होंगे वो कैसे होने चाहिए। सोल्यूशन क्या होता है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लाई करने वाली हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब हमारे पास सिस्टम में एक ही इक्वेशन है, इफ यू हैव जस्ट वन इक्वेशन then every point on that plane, every point satisfying every point satisfying this equation is on this plane, and every point on this plane will satisfy this equation. So the solution will be the entire plane, right? Because in our system there is only one equation, एक ही equation है, और
उसी को सेटिस्फाई करना चाहिए सारे पॉइंट्स को। तो सारे पॉइंट्स जो उस प्लेन पर लाई करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। और सोल्यूशन क्या दिखेगा हमें, एक प्लेन दिखेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की टर्म्स यानी R3 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे तो R3 में हमें एक प्लेन मिलेगा, एंटायर प्लेन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें अच्छा, इसमें हम और क्या देख सकते थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन का ही केस है। क्या यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं? क्या सिर्फ हम एक पॉइंट बोलेंगे कि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? नहीं, पूरा का पूरा प्लेन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। पूरा का पूरा प्लेन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, इस सिस्टम का क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी है नहीं। ठीक है, और जो हमने केसेस पढ़े थे पिछले क्लासेस में, उसमें क्या कह रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसा है कि जो रैंक है किसकी, ए की, वो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, जो कि यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो हमारे पास द ओनली प्रोबेबिलिटीज उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही इक्वेशन है, हमारी रैंक, रो रैंक, फुल रो रैंक आएगी, राइट। फुल रो रैंक में हमारे पास इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन नहीं होती है, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन भी नहीं होगी, सोल्यूशन होंगे और सोल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा प्लेन हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, अगर हम दो इक्वेशन लेकर चलें, जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू -3। सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, ये हमारा पूरा क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है। सिस्टम में दो इक्वेशंस है, ईच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन P1 और प्लेन P2। तो हमारे मान लीजिए एक प्लेन ऐसा है और दूसरा प्लेन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, दूसरे प्लेन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये इसको यहाँ पर कट करके और क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा ऐसे। तो अगर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, इंटरसेक्ट एक लाइन पर करेंगे, इंटरसेक्ट एक लाइन पर क्या करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पर सिर्फ हम ये केस लेकर चल रहे हैं कि क्रॉस करके आगे बढ़ जा रहा है, दे आर नॉट लाइंग विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगी, इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, एक लाइन पर करेंगे। और अगर हम एक लाइन की बात करें तो उस पर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इसी तरह अगर इस सिस्टम का सोल्यूशन है तो हमारे पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। मतलब अगर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, आप ये दोनों प्लेन ड्रॉ करके देखेंगे, अगर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, द ओनली पॉसिबिलिटी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन यानी कि m क्या है, 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज 3। इस केस में फुल कॉलम रैंक तो आ नहीं सकती किसी भी केस में, इसका मतलब हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा। एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा मतलब हमारे पास अगर सोल्यूशन हुए तो इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे हमें जो प्लेन P1 पर भी लाई कर रहे हैं और प्लेन P2 पर भी लाई कर रहे हैं। और वो जो पॉइंट्स हैं अगर हम उनको देखें तो वो क्या होंगे, वो सारे पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन पर लाई कर रहे होंगे। तो कंप्लीट लाइन हमारी क्या बनेगी, सोल्यूशन बनेगी। ठीक है, नाउ अगर हम कहें कि ना ना भाई ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे।
आप दोनों प्लेन प्लॉट करके देख सकते हैं, या फिर हम जो हमने पीछे देखा था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास ना। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि हो सकता है कि सपोज हमने ले लिया 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो दोनों सिस्टम है, दोनों प्लेन है, ये भी एक प्लेन है P1, ये भी एक प्लेन है P2, और ये दोनों प्लेन क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, ये नीचे और सेम इसी के ऊपर। ठीक है, दोनों प्लेन्स क्या हो, पैरेलल। जैसे लाइंस पैरेलल हो सकती थी, वैसे यहाँ पर ये प्लेन्स भी क्या होंगे, पैरेलल हो। अगर ऐसा केस हुआ, अगर ऐसा केस हुआ कि दो प्लेन्स पैरेलल हैं, ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, तो क्या होगा, नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा। नो सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कभी भी मीट ही नहीं करेंगे, हम वो पॉइंट्स ढूंढ नहीं पाएंगे कभी भी, जहाँ वो पॉइंट्स ढूंढ नहीं पाएंगे कभी भी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास नो सोल्यूशन का केस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, तीसरा केस भी हो सकता है क्या, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होती हैं, व्हेन m इज लेस देन n, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है और नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, यूनिक सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्री वेरिएबल हमेशा आएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है ना, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी दो तरीके से है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो प्लेन्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, और वो इंटरसेक्ट कर रहे थे एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। नाउ सपोज अब हमारे पास दोनों प्लेन्स जो है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट टाइप के हैं, जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x 6y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 4। ये दो सिस्टम, दो इक्वेशंस है हमारे पास सिस्टम में। तो ये दोनों इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन P1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी प्लेन P1 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लेन जो है P1 वो हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पर भी है, जब ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट एक लाइन पर करेंगे, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स रखती है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन की फॉर्म में, यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि हमारी दोनों इक्वेशन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, सेम ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस केस में भी हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन ही एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक सोल्यूशन का केस यहाँ पर नहीं हो सकता है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, 4 3 5 2, इसकी आएगी 2 -3 2 -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे, इसका हाफ यहाँ से माइनस करेंगे, तो 4 3 5 2 0, इसका हाफ यानी 3/2 माइनस करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 3 6 और 3 9 -9/2, इसका हाफ यानी कि 5/2 क्या करना है, माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारे पास -1/2, इसका हाफ यानी कि हमारे पास 1 जो है वो मुझे इस यहाँ से माइनस करना है, तो माइनस का 4। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास पहली रो में भी नॉन जीरो एंट्री है, दूसरी रो में भी हमारे पास नॉन जीरो एंट्री है, फुल फुल रो रैंक हमें दिख रही है। तो इस केस में कभी भी, इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर हमारे पास इनकंसिस्टेंसी तो नहीं होगी, मतलब सॉल्यूशन तो आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे रैंक जो है वो क्या दिख रही है, रैंक ऑफ ए, वो रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर दिख रही है, मतलब सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, और दो प्लेन, जो हमें दो प्लेन्स दिख रहे हैं वो दोनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि रैंक हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है।
मतलब दो रोज हमारे पास एल आई है, ये दोनों रोज हमारे पास एल आई है, तो ये दोनों रो एक प्लेन को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकती। एक प्लेन को कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब दोनों क्या होती, एल डी होती, राइट। दोनों इक्वेशंस अगर आपस में एल डी होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट होंगी, एक से दूसरी निकाली जा सकती होगी, तो दोनों एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मतलब दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है, हमारे पास सोल्यूशन हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हमारे पास कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में यानी कि z जो है वो क्या है, एज अ फ्री वेरिएबल यहाँ पर काम कर रहा है। दोनों प्लेन्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों आपस में एक साथ काम नहीं कर, एक साथ लाइन नहीं कर रहे हैं, दोनों प्लेन इंडिपेंडेंट है, राइट। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 4 3 5 2, 4 3 5 -2। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस R1, तो 4 3 5 2 0 0 0। क्या किया था हमने, R2 माइनस R1, सो -2 -2 यानी माइनस का 4। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो बी कॉलम है या फिर कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने कॉलम बनाया था, उसमें क्या आ रहा है, पाइवोट पोजीशन आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है। रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर नहीं है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। तो ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन होती है, नो सोल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, पैरेलल है। अगर आप दोनों को प्लॉट करके देखेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। देख सकते हो, ये रेशो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन कांस्टेंट की रेशो जो है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है, वो डिफरेंट आ रही है। लाइन से रिलेट कर पा रहे हो आप इसे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, 4 3 5 2 8 6 10 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 5 2। हम क्या करें, R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 -2 R1, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। इस केस में हमारे पास रो रैंक, सॉरी रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या है, 1 है। दोनों बराबर है, मतलब कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है। लेकिन रैंक ऑफ ए क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब हमारे पास एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। जब दोनों इक्वेशन एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम में क्या है, एक ही प्लेन है, उसी को सेटिस्फाई कराना है। तो एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दैट प्लेन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर जो हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे वो एक प्लेन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये प्लेन क्या होगा, P1। अब हम दो प्लेन्स की बजाय तीन प्लेन्स लेकर चलते हैं। अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इफ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड थ्री थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब अब हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो 4x + 6y + 10z = 2, 2x - 3y + 5z = 3, x + y - z = 1। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है। ये 3 इक्वेशंस जो है वो ईच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन P1 P2 P3, ठीक है। इन तीनों प्लेन्स को प्लॉट करेंगे। अब तीन प्लेन्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम देखते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों प्लेन्स जो है, मान लीजिए ये हमारी लाइन है एक, तीनों प्लेन्स इस लाइन से होकर निकल रहे हैं। देखो जैसे कि आपकी बुक, आपकी कोई भी नोटबुक ले लीजिए। नोटबुक में अगर हम उसको खड़ा करें एक्सेस पर वर्टिकली, तो क्या होगा, जो हमारा जहाँ पर सारे पेजेस को पिन किया गया है, तो सारे पेजेस जो हैं वो उस एक लाइन से पास होकर जा रहे हैं। अगर हम उसको एज ए लाइन कंसिडर करें, सारे पेजेस जो हैं, पेजेस आर प्लेन्स, सारे प्लेन्स जो हैं वो लाइन से पास होकर जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि सारे P1 P2 और P3 जो तीनों के तीनों प्लेन हैं, ऐसे करके, ये तो हमारा ये हो गया फर्स्ट। देन एक हो गया हमारा ऐसे पीछे से आ रहा है, ठीक है। एक हमारा इधर से आ रहा है,
तो P1 P2 P3 तीनों के तीनों प्लेन्स जो हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, एक लाइन से पास होते हुए जा रहे हैं। तो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब एक लाइन, इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स हमारे क्या बनेंगे, इनके सॉल्यूशन बनेंगे, इस सिस्टम के सॉल्यूशन बनेंगे। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स तीनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सारे पॉइंट्स तीनों प्लेन पर लाई कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन कहाँ होंगे, इस लाइन पर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो हमारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। अब जैसा आपका रूम देखिए, आपके रूम में क्या हो रहा है कि आपकी एक दीवार, ये दूसरी दीवार, ठीक है, और नीचे हमारा फ्लोर है। ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों प्लेन्स कहाँ इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट जो इन तीनों प्लेन्स पर लाई करेगा वो कौन सा है, वो होगा हमारा ये पॉइंट। और ये इकलौता होगा, और कोई पॉइंट होगा क्या, नहीं। ये प्लेन हमारा इसको क्रॉस करके ऐसे आगे बढ़ जाएगा। पूरा प्लेन ले लीजिए आप, इनफाइनाइट प्लेन ले लें। अब मैं बना इसको ऐसे रही हूँ, बट ये इनफाइनाइट प्लेन है। ऊपर भी कितना एक्सटेंड हो सकता है, लेफ्ट राइट कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो तीनों प्लेन्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे आप एक्सेस बनाते हो ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हो एक्स वाई जेड वाली, तो वो कहाँ सारी जो एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, या जेड एक्स प्लेन है, ये तीनों प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं सर। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हमारे पास एक एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है जो तीनों प्लेन्स पर लाई कर रहा है, तीनों प्लेन्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या केस है, ये केस हो सकता है कि जो तीनों के तीनों प्लेन हैं वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। इस केस में क्या कोई ऐसी लाइन या पॉइंट हमें मिलेगा जो इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सिस्टम में लाई करने वाली हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट जो साइमल्टेनियसली इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है। क्या कोई है ना, यहाँ पर तो तीनों प्लेन जो है हमें क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट हो ही नहीं सकता जो इन तीनों पर लाई करे। ये हमारी नो सोल्यूशन का केस बन जाएगी। ठीक है, अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे दो प्लेन्स जो हैं वो हमें पैरेलल दिख रहे हैं, और जो तीसरा प्लेन है वो इनको कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, क्या इसमें सोल्यूशन होगा ना, इसमें भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम ये प्लेन लें, ये P1 है मान लीजिए, ये P2 है, ये P3 है, अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ P1 और P2 होते तो क्या सोल्यूशन मिल जाता, हाँ मिल जाता, क्योंकि दोनों प्लेन्स क्या करें, इंटरसेक्ट करें, और कहाँ इंटरसेक्ट करें, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करें। ये लाइन पर लाई करने वाले सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे क्या बन जाते, सोल्यूशन बन जाते, क्योंकि वो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। वो P1 पर भी लाई कर रहे हैं और P2 पर भी लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ P1 और P3 होता सिस्टम में, तब भी हमारे पास सोल्यूशन मिल जाता, क्योंकि P1 और P3 भी आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स हमारे P1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, P1 पर भी लाई कर रहे हैं, और ये हमारे P3 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, P3 प्लेन पर भी लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या, हमारे सिस्टम में P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है। अगर सिस्टम में तीनों प्लेन है तो हमें ऐसे सॉल्यूशन क्या बनेंगे, ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो P1 पर भी लाई करे, P2 पर भी और P3 पर भी, तीनों पर साइमल्टेनियसली लाई करनी चाहिए। क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है।
इसमें क्या था, जो P2 और P3 थे, अगर ये हमारा सिस्टम बनाते तो हमारा नो सोल्यूशन का केस ही बनता, राइट। अब मान लीजिए कुछ ऐसा है कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, और इसको ऐसे क्रॉस किया हमने यहाँ पर, और ये पीछे गया हमारे पास ऐसे, एंड देन हमारे पास एक तीसरा प्लेन है ऐसे। हमारे पास तीसरा प्लेन है जो इन दोनों प्लेन्स को कट करते हुए जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली बीच में क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है ऐसे, और ये पीछे भी ऐसे नीचे आ रहा है, एंड देन ये नीचे ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रायंगुलर फेस बनेंगे। एवरी टू प्लेन्स, अगर हम P1 P2, ये P1 लिया है, ये P2 लिया है, ये P3 लिया है, P1 और P2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, लाइन पर। P1 और P3 भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, ये भी लाइन पर। P2 और P3 भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पर। बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर P1 P2 और P3 तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो सकती है, नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पर भी हमारे पास नो सोल्यूशन होगा। P1 P2 P3 अगर हमारे पास सिस्टम में है तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो P1 पर भी लाई करे, P2 पर भी लाई करे और P3 पर भी साइमल्टेनियसली लाई करे, ठीक है। तो जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है और 3 ही इक्वेशंस हैं, तो P1 और P2 और P3 तीन हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लेन्स हो जाएंगे। अब उन तीन प्लेन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट की भी है, यूनिकनेस की भी है और नो सोल्यूशन की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जितने भी केसेस थे इन्हें हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैथमेटिका में मैंने कुछ प्लेन्स जो हैं वो प्लॉट किए हैं, एक्स वाई जेड हमारे लीनियर हों, जिसमें मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस तरह के मैंने कुछ प्लेन्स प्लॉट किए हैं। इसमें प्लॉट 3D में हम z इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू आएगी x और y के टर्म्स में हमने वैल्यू दी है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा है 2 माइनस 4x माइनस 6y बाई 10 इज इक्वल्स टू z। तो यहाँ से 10z जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 4x माइनस 6y, दैट इज हमारी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऑल्टरेशंस किए हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पर तीन प्लेन्स जो हैं वो प्लॉट किए हैं। इसमें और इसमें हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या है 4x माइनस 6y, यहाँ पर भी क्या है 4x माइनस 6y, और z का कोएफिशिएंट भी क्या रहेगा, 10 रहेगा। दोनों में ही x y और z तीनों के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब जब हम अपनी क्या बनाएंगे, हम अपनी जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रो होगी, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रो होगी वो क्या आएंगी, लीनियरली डिपेंडेंट आएंगी। लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास रैंक जो है वो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो एक कम हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आएंगी, ठीक है। ए की रैंक क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। अच्छा, लेकिन हमने क्या किया है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये अलग है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 2। ये जो पूरी इक्वेशन अगर हम z में रखेंगे, इसको z इज इक्वल्स टू दिस रख के, तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या बनेगी, 2। इस केस में हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या बनेगी, 200, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम ऑपरेशन लगाइए आप, जो आपकी रो किस तरह की दिखेगी, 0 0 0, एंड यहाँ पर फिर आपको बी में क्या दिखेगा, एक पाइवोट दिख जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म क्या है, डिफरेंट है। इस तरह हम क्या बोल सकते हैं कि एक नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा। किसका केस बन जाएगा, नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा, क्योंकि पाइवोट कहाँ आ जाएगा, हमारे बी कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका डायग्राम देखो क्या दिख रहा है,
एक चीज ध्यान रखना, जब हमारे पास इस तरह के प्लेन होते हैं ना, जब एक्स वाई और जेड इनका कोएफिशिएंट सेम रहता है और कांस्टेंट टर्म डिफर करती है, तो इस तरह के प्लेन्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या रह रहे हैं, सेम रह रही है। तो सेम लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन, तो वो हमारे क्या आते हैं, पैरेलल आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन सारे क्या होंगे, वाई जेड के पैरेलल होंगे, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होंगे। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हमारे पहले वाले दो प्लेन्स हैं ना, ये दो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमारा एक तो ये हो गया ब्लू वाला, एक हो गया ऑरेंज वाला। एंड जो हमारा जो थर्ड प्लेन है, थर्ड इक्वेशन है, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लेन है वो इनको कट करते हुए गुजर रहा है। नाउ सिंस ये दो प्लेन्स जो हैं वो आपस में कट नहीं कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर ना, ये दोनों कट कर रहे हैं, ब्लू और ग्रीन हमारे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इन अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ ये दो प्लेन होते तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता, ये लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास ऑरेंज और ग्रीन वाले होते तो भी हमारे पास सोल्यूशन आ जाता, जो ये कट करी ये वाली लाइन आ जाती। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, सिस्टम में तीनों प्लेन है। क्या तीनों प्लेन कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसी लाइन है या कोई ऐसा प्लेन है जो तीनों प्लेन्स पर लाई कर रहा हो साइमल्टेनियसली? नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, नो सोल्यूशन का केस बन जाता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अच्छे से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइएगा, रैंक निकालिएगा, क्या आ रही है, क्या फुल कॉलम रैंक आ रही है, फुल रो रैंक आ रही है, नो सोल्यूशन का केस आपका बनेगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ज्यादा आएगी ए की रैंक से, ए की रैंक 2 आएगी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 3 आएगी। ठीक है, चेक कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये, यहाँ पर देखो, इसमें क्या हो रहा है, मैंने प्लॉट किया है x प्लस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन एंड 3x माइनस वाई प्लस वन बाई 3। ठीक है, तो इस प्लेन में इन जो ये जो इक्वेशंस लिखे हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लेन है वो हमें कुछ ऐसे दिख रहे हैं। देखो, ये सारे के सारे प्लेन, तीनों प्लेन जो है वो एक लाइन से पास होकर गुजर रहे हैं। क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तीनों प्लेन्स जो हैं वो एक लाइन से पास होकर जा रहे हैं, राइट? दिख रहे हैं मीट होते हुए एक लाइन पर? हाँ जी, दिख रहे हैं। तो मतलब इसके पास सोल्यूशन तो है, बट तीनों प्लेन्स जो है वो एक लाइन पर, तो पूरी लाइन हमारी सोल्यूशन में जाएगी, मतलब हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या कह सकते हो, कंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है दोनों की रैंक क्या आएगी, बराबर आएगी। लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फुल कॉलम रैंक नहीं आएंगे। ठीक है, हमारा एक कॉलम बच जाएगा जो पाइवट कॉलम नहीं बनेगा, मतलब हमारे पास क्या होगा, फ्री वेरिएबल होगा। तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी जो इक्वेशंस ली हैं हमने ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स बनाइएगा और चेक कीजिएगा कि क्या ऐसा आप देख पा रहे हैं या नहीं, कि आपका एक कॉलम में पाइवोट नहीं बन रहा है, आपके पास दो ही पाइवोट कॉलम बनेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है ये दोनों आपकी एल आई आएंगी, और जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो इन दोनों का क्या होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब जब इक्वेशन बनाओ ना तो आप एक्स वाई जेड एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, जैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है ना वैसा ही बनाइएगा। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा कमांड के हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के हैं, इसमें क्या है, x प्लस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन और x प्लस फोर मैंने प्लॉट किया है। बेसिकली z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर मैंने प्लॉट किया है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे जो प्लेन्स हैं वो कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। देखो, जो हमारा ब्लू वाला प्लेन है और ग्रीन वाला प्लेन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पर, राइट? हमारा ग्रीन और ऑरेंज वो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पर, हमारा ब्लू और ऑरेंज भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पर, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नो सोल्यूशन का केस है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो तीनों प्लेन्स पर साइमल्टेनियसली लाई कर जाए, प्लेन पॉइंट या लाइन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे
कि यहाँ पर क्या है कि नो सॉल्यूशन का केसेस का मतलब क्या है, आपका जो कांस्टेंट वाला कॉलम बनेगा उसमें क्या आ रहा होगा, पाइवोट आ रहा होगा। उसमें पाइवोट आने के लिए जो हमारी ए मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसकी आरआरएफ में लास्ट रो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब कि हमारी जो रैंक है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की वो क्या आ रही होगी, लेस देन 3 आ रही होगी, बेसिकली 2 या 1 आ रही होगी। ठीक है, इसमें जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे ना, तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि आप जब कोई भी दो रोज लेकर चलोगे ना उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की, तो कोई भी दो रो आपकी एल आई आएंगी, लेकिन जब आप तीनों रो इकट्ठे देखोगे तो वो आपकी एल आई नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्यों, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि दो प्लेन्स, कोई भी दो प्लेन्स जब आप लेंगे तो वो क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई, ठीक है, तो मतलब हमारी जो सिस्टम बनेगा P1 P2 का, वो क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन होंगे उसके, कंसिस्टेंट बनेगा और हमारे पास क्या रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं दो प्लेन्स के पास। ठीक है, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास दो कॉलम्स में क्या आ रहे होगा, पाइवट आ रहा होगा, दोनों रोज हमारी नॉन ज़ीरो होंगी, हमारे पास दो कॉलम्स में पाइवट होगा, और हमारी जो बी है उसमें पाइवट नहीं हो सकता है, तो दोनों रोज आपस में क्या होंगे, एल आई होंगी, पाइवट तभी आएगा, राइट। इस तरह हम देख सकते हैं कि सब मैट्रिसेस जो होंगी इसकी दो दो रो लेकर आप बनाओगे तो उनके जो रैंक आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसमें हमने क्या किया है, कि जो ये एक्स वाई और जेड तीनों के कोएफिशिएंट सेम रखे, 2x 3y 2x 3y 2x 3y, बट कांस्टेंट टर्म्स जो है वो मैंने चेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे जो प्लेन्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। तो क्या केस आएगा, नो सोल्यूशन का केस आएगा। नो सोल्यूशन का केस मतलब हमारा जो बी कॉलम है उसमें क्या बनेंगे, पाइवट बनेंगे। इसमें हमारी रैंक क्या बनेगी, 1 बनेगी, किसकी, मैट्रिक्स की, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या बनेगी, 1 बनेगी, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम ही रह रहे हैं हमारी तीनों इक्वेशन में। ठीक है, तो इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हमारी क्या बन रही है, 1 बन रही है। इसमें हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या बनेगी, 2 बनेगी, अगर हम तीनों रोज इकट्ठा रखेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर हम दो दो का लेंगे कि दो रो एक बार, दो बार दो रो एक बार, दो रो एक बार, तो वो आपस में क्या आएंगी, एल आई आएंगे, दोनों में पाइवट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इस वाले केस में, हमारे पास क्या बना, सॉल्यूशन बन रहा था, रैंक क्या आ रही थी, रैंक 2 आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की भी। तभी हमारे पास क्या बन रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक फ्री वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस, हमारे पास बी में क्या आएगा, पाइवट आ जाएगा। अब एक ही केस बच गया हमारे पास, और वो केस क्या है, यूनिक सोल्यूशन का। तो अब देखिए ये जो इक्वेशंस हैं, 4x माइनस 6y, 2 माइनस 4x माइनस 6y बाई 10, 3 माइनस 2x माइनस 5y बाई 5 और x प्लस वाई माइनस 1, ये तीनों ही आपस में क्या आएंगी, इंडिपेंडेंट आएंगी। जब आप इनकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो ये रैंक आपकी क्या आएगी, 3 आएगी, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी क्या आएगी, 3 आएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, फुल कॉलम रैंक, फुल रो रैंक, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यूनिक सोल्यूशन कैसे देख पा रहे हो, देखो जो हमारा ब्लू वाला प्लेन है वो ऑरेंज वाले के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन पर, राइट, एंड ये पूरी लाइन नीचे तक, एंड जो ऑरेंज और ग्रीन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाली लाइन पर, ये पूरी लाइन नीचे तक आ रही है, देखो यहाँ पर दिख रही है नीचे। ठीक है, और कौन सा बच गया हमारे पास, जो हमारा ब्लू और ग्रीन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाली लाइन पर, राइट, और ये तीनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री प्लेन्स। ये तीनों प्लेन उस पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे, कहाँ पर, ये जो बीच में हमें दिख रहा है पॉइंट, ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री प्लेन, एक यूनिक पॉइंट हमें मिलेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कॉलम वाइज, जो हम बात कर रहे थे कि कॉलम स्पैन में होना चाहिए, वो कैसे दिखाई देगा हमें। तो देखो हम लेकर चल रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स है हमारे पास एंड 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो कैसे दिखेगी, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी।
सपोज 2 4 6 -1 0 2 ऐसे हम लिख रहे तो इक्वेशंस क्या है, मतलब कि 2x - y इज इक्वल्स टू बी कांस्टेंट मान लेते हैं 3, देन हमारे पास है 4x इज इक्वल्स टू 2, देन हमारे पास 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई है और हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी 3 2 1। अब जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके हमारे पास दो कॉलम है, एक कॉलम 1 2 4 6 एंड सेकंड कॉलम है -1 0 2। तो ये जो कॉलम है अगर हम इनको देखें तो हमारे पास 3 क्रॉस 1 के बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें हमारे पास 3 एंट्रीज हैं। अगर मैं देखूं तो ये R3 का एलिमेंट बन जाएगा, ये R3 में एक वेक्टर बन जाएगा 2 4 6, ये हमारा C1 और C2 हमारा बन जाएगा R3 में ही -1 0 2। ठीक है, अब हम R3 में हमारे जो C1 और C2 हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करते हैं। R3 यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट है 2 4 6, x एक्सिस पर हम 2, y पर हम चलेंगे 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर होगा कुछ, एंड देन हमें z पर चलना है 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, 2 4 6 क्यों बनाइएगा, इसको ऐसा कंप्लीट कीजिएगा ऊपर। ठीक है, और पॉइंट बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा -1 0 2, तो ये कहाँ पर होगा, एक्स जेड प्लेन में -1, यानी कि हमें पीछे जाना पड़ेगा इधर 0 एंड 2 1, तो यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा -1 0 2। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्केलर यहाँ पर क्या है हमारा आर से, आर मतलब रियल नंबर से, किसी रियल नंबर से अगर हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक कंपोनेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर ये अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो उतना टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1.5 से ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ हमें इधर, देन हमारे पास और बड़ा, अगर और बड़ी वैल्यू हुई तो यहाँ पर हमें दिखेगा। ठीक है, अगर हमारा अल्फा जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा हुआ तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर छोटा होगा, डिमिनिश। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिखेगा। अगर हमारी अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हुई यानी नेगेटिव हुई तो ये हमारा पीछा ही प्रोड्यूस हो जाएगा उतना ही। ठीक है, इधर राइट हम ये हो जाएगा। ऐसे ही हम C2 के लिए भी बोल सकते हैं, C2 हमारा अगर अल्फा 1 से बड़ा हुआ तो इधर ही आगे प्रोड्यूस होगा, अगर माइनस में हुआ तो पीछे प्रोड्यूस होगा, और अगर हमारा 1 0 और 1 के बीच में हुआ तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, मतलब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, अल्फा 1 हमने बोल दिया C1 को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन पर चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, इस लाइन पर रह रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जब हम C2 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी अल्फा 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कहाँ रह रहे हैं, हम इस वाली लाइन पर रह रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, इसी लाइन पर रह रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका सम कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, इस वेक्टर का सम रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में कहीं लाए, पैरेललोग्राम लो। ठीक है, बीच में लाई करेगा, सेम प्लेन में लाई करेगा जिसमें ये वेक्टर और ये वेक्टर था, उसी प्लेन में वो सम भी लाई करेगा। हाँ जी करेगा। जब मैं ये वेक्टर लूंगी और ये मतलब ये कुछ टाइम्स था ना, अल्फा टाइम्स था, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पहुंचे थे। जब मैं ये वेक्टर लूंगी और मैं ये वेक्टर लूंगी तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ, कुछ यहाँ लाई करेगा। तो ऐसे ही करते हैं, जब मैं ये लूंगी और नीचे इसका ये लूंगी, मतलब मेरा क्या कहना है, एक वेक्टर ये लिया, दूसरा इस तरफ लिया माइनस टाइम C2, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इधर होगा। फिर अगर मैं इधर और इधर लूंगी तो हमारा रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करेगा जिसमें ये दो वेक्टर्स लाई करेंगे जिनका हम सम ले रहे हैं। तो ऐसे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा 1, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा 2 रखें और उनका हम सम निकालेंगे, तो जिस लाइन में ये हमारी दोनों, सॉरी जिस प्लेन में
हमारी ये दोनों लाइन लाई कर रही है, ये दोनों लाइन जिस प्लेन में लाई कर रही है उस प्लेन के हर एक पॉइंट तक पहुंचने का हमें रास्ता मिल जाएगा। इनफाइनाइट प्लेन होगा ये, मैंने बाउंड्रीज बनाई है बस, लेकिन ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, राइट। तो जिस प्लेन में ये दोनों लाइन लाई कर रही होंगी उस प्लेन के हर एक पॉइंट को क्या हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, एक वेक्टर यहाँ से ले, जो भी पॉइंट मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इतना रिजल्टेंट मेरा ये आए, इस डायरेक्शन में आए, इतना मैग्नीट्यूड है। तो मैं इनका, इसका कितना टाइम्स लूं, इसका कितना टाइम्स लूं, जिनका सम करूं तो मैं यहाँ पहुंचूं। ठीक है, पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कोई ना कोई, किसी ना किसी अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए यहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया ना, ये जो प्लेन है, ये क्या हो गया, हमने ये प्लेन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, लीनियर स्पैन हो गया, लीनियर लीनियर स्पैन हो गया। इसका C1 और C2 वेक्टर का। क्यों? क्योंकि C1 को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये स्केलर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल नंबर से, एवरी पॉसिबल रियल नंबर। C2 को भी हम किसी अल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवरी पॉसिबल रियल नंबर, और उनका हम सम कर रहे हैं, लीनियरली उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लीनियर स्पैन हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हमने जब ले लिए C1 और C2 के, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर स्पैन बन जाएगा, या फिर हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बन जाएगा, जो कि C1 और C2 की सहायता से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, C1 और C2 जिसके क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। ठीक है, अब इस प्लेन पर जो भी पॉइंट लाई करेगी उस उन सारे पॉइंट्स तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स इस प्लेन के बाहर लाई करेंगे, नाउ सपोज एक पॉइंट है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या मैं यहाँ पर पहुंच सकती हूँ इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से? नहीं पहुंच सकती। मैं इन वेक्टर्स का क्या क्या कर सकती हूँ, या तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और फिर उनको ऐड कर सकती हूँ। तो हम ये कोई भी ऑपरेशन अगर वेक्टर पर ऑपरेट करते हैं तो हम कहाँ रहते हैं, हम उस वेक्टर के प्लेन में ही रहेंगे, उसके परपेंडिकुलर तो नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे इन दोनों की सहायता से। तो अगर हमारा जो बी है, बी यानी जो कांस्टेंट कॉलम होता है, वो कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो इस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, इस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, जो ये दोनों वेक्टर जो हमारे जो कॉलम्स हैं C1 C2 स्पैन कर रहे हैं, अगर उस प्लेन में हमारा जो कांस्टेंट वेक्टर है वो लाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें ये अल्फा 1 और अल्फा 2 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, हम ये पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप इसका कितना भी अल्फा टाइम्स, कितना भी अल्फा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर जाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो तो हम कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर बी जो है वो हमारा बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ आर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स C1 C2 C3 जितने भी कॉलम्स हैं, अगर उनके लीनियर स्पैन से बी बिलोंग करता है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। और अगर नहीं बिलोंग करता है तो हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उस केस में हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 है ना, यही वैल्यू है आपके जो अननोन्स है उनकी। कैसे देख पा रहे हो आप, देखो हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कैसी थी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारी ए, जिसका फर्स्ट ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है। ठीक है, और हमारे वेरिएबल्स हैं x और y। तो हम क्या करें, कॉलम C1 को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कॉलम C2 को हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी हमारा ये x क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो हमारा क्या मिलना चाहिए, हमें b मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारा b ऐसा है जो इस प्लेन में, जो ये C1 और C2 स्पैन कर सकते हैं, जिस जिस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ये प्लेन बनाएगा, वो सारे पॉइंट्स क्या बनाएंगे, ये प्लेन बनाएंगे। अगर हमारा बी इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो कोई भी अल्फा 1 अल्फा 2 हमें वहां नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब क्या है, उसके लिए एक्स और वाई जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर बी हमारा, देखो अगर C1 और C2 कोई भी हमारे पास वेक्टर होते तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर स्पैन ऑफ C1 और C2। हमने C1 और C2 के सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन इकट्ठे कर लिए, तो ये हमारा क्या बन जाता है, लीनियर स्पैन बन जाता है, और ये क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये C1 और C2 है क्या, बेसिकली हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के कॉलम्स है, मैट्रिक्स के क्या है, कॉलम्स है। तो हमने इस लीनियर स्पैन का नाम दे दिया कि ये कॉलम स्पैन है। क्या है, कॉलम स्पैन, क्या बनता है, कॉलम स्पेस। ठीक है, तो अगर बी हमारा कॉलम स्पेस में जा रहा है मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर बी हमारा कॉलम स्पेस में नहीं जा रहा है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है,
हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हम C1 और C2 C3 जितने भी कॉलम्स हैं उनकी कितनी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर ले, हम B पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंचना है समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे पास दो वेक्टर थे, इसलिए हमारा क्या बन रहा था, एक प्लेन बन रहा था। नाउ सपोज अगर हमारा एक ही कॉलम है, देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये, एक मिनट, ये हमारी क्या बना रहे हैं हम, ये हमारी है z एक्सिस, y एक्सिस, और ये हमारा है x। नाउ सपोज हमारे पास एक ही वेक्टर है, उस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, क्या वो भी प्लेन बना देंगे? देखो सपोज मेरे पास है 2 4 6, तो यहाँ पर 1 2 2 हो गया, इसको पैरेलल लेके आएंगे, 1 2 3 4 हो गया, इसको पैरेलल लेकर आएंगे, तो ये बन गया। अब इस पर 6 ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आएंगे ऐसे, तो यहाँ पर हमारा कुछ क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 2 4 6, आगे सामने बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, मतलब एक ही वेरिएबल है, लाइक 2x इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, 4x इज इक्वल्स टू 9 दे रखा है, और 6x इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है, ठीक है। इस तरह का सिस्टम है मेरे पास। तो इसमें मुझे क्या देखना है, मुझे क्या देखना है, मेरा जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2 4 6, और मेरी कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3 9 12, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी 2 4 6 3 9 12। इसमें हम क्या करेंगे, इसका ट्वाइस माइनस करते हैं, इसमें से आ जाएगा 2 3 4 माइनस 4 0 9 माइनस 6 3, इसका थ्राइस R1 का थ्राइस हम माइनस करेंगे R3 में से, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका थ्राइस यहाँ 12 है, इसका थ्राइस यानी 9, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। इन दोनों को भी बनाया जा सकता है, सेम आ गई, तो ये हो जाएगा 2 3 0 3 0 0। हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट कॉलम उसमें क्या आ रहा है, पाइवोट आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम डायग्राम में, ये दोनों वेक्टर कहाँ बन रहे हैं। अब जो ये वेक्टर था हमारा, जो कॉलम C1 था, कॉलम C1 था, ये किसका था, R3 का था, थ्री ट्रिपलेट टपल बन रहा था हमारा 3 एलिमेंट्स का, हाँ जी। तो R3 में जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। देन R3 का सबस्पेस होगा जो कॉलम स्पैन बनेगा हमारा। तो हम क्या कर रहे थे, वेक्टर अगर हमारे पास है तो उसको हम क्या करते हैं, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। स्केलर कहाँ से आ रहा था, रियल नंबर से आ रहा था। और हमने देखा जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वेक्टर हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, राइट। या तो हमारा वेक्टर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, या फिर हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, तो हमारा वेक्टर की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, पीछे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कुल मिला के ये जो है, ये हमारा अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें वेक्टर को, और सारे पॉसिबल स्केलर से मल्टीप्लाई करते रहें, मतलब सारे वैल्यूज ले ले R से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी जो 2 4 6 से पास होकर जा रही है, ठीक है। बिल्कुल यही बनेगा, हाँ जी। अब हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर तो है नहीं, तो जब हमारे पास एक वेक्टर होता है उसके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, α1 C1, सिर्फ यही होगा। और अल्फा हमारा कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आ जाएगा। ये हमारा बन जाता है लीनियर स्पैन ऑफ सिंगल वेक्टर C1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम था उसमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसका जो कॉलम था 2 4 6, उसका जो लीनियर स्पैन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये लाइन बन रही है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ तो जो हमारा जो कांस्टेंट कॉलम है, कांस्टेंट सी के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉलम बन रहा था बी कॉलम मैट्रिक्स, वो हमारी इसी लाइन पर किसी पॉइंट होना चाहिए, इसी लाइन पर कोई पॉइंट होना चाहिए। अगर इस लाइन पर नहीं है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो हम कोई अल्फा ऐसा ढूंढ नहीं पाएंगे जिसे मल्टीप्लाई करें 2 4 6 को तो हम उस एलिमेंट पर पहुंच जाए, उस पॉइंट पर पहुंच जाए, ठीक है। तो अब जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 3 9 6, तो यहाँ पर 3 है हमारा, ये 3, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, तो ये हमारा आ जाएगा 9 इधर, यहाँ पर, यहाँ पर हमारा बनेगा 3 9 एंड देन 12, यानी कि सपोज यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ये लाइन तो यहाँ से होकर गुजर गई, यहाँ पर तो आई नहीं। तो क्या हम इस पॉइंट पर कभी भी पहुंच सकते हैं इस वेक्टर को अल्फा से मल्टीप्लाई करके, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारा ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। आप देख पा रहे हो बी वाले कॉलम में हमारे पास क्या मिल रहा है, पाइवोट मिल रहा है। ये दोनों जो वेक्टर है वो आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। 3 4 9, सॉरी 3 9 12 एंड 2 4 6, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं, ठीक है। जब हमारे पास एक ही वेक्टर होता है तो वो क्या बनाता है, लाइन बनाएगा। जब हमारे पास दो वेक्टर हो जाते हैं
लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो आपस में मिलकर लीनियर स्पैन उनका क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। जब हमारे पास 3 वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका लीनियर स्पैन क्या बनेगा, एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनेगा। ठीक है, क्लियर है कि हम कॉलम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके,